We started with LPP. We were doing the first part of LPP, that was LPP formulation. We were formulating the LPPs. 2 क्वेश्चन किए थे हमने, फर्स्ट एंड सेकेंड. थर्ड किसी ने ट्राई किया? रीड द थर्ड क्वेश्चन. पढ़ लिया? An oil refinery can blend 3 grades of crude oil to produce quality A and quality B petrol. So 3 types of crude oil can be blended and 2 categories of petrol can be produced. 2 possible blending processes are available. For each production run, the older process uses 5 units of crude Q, 7 units of crude P and 2 units of crude R and produces 9 units of A units and 7 units of 9 units of A and 7 units of B. बोला है 3 तरह का रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं जो क्रूड ऑयल है, विच इज़ P, Q and R. 3 types of raw material we are using and we are running process on those raw material. उनको मिला के हम उस पर कुछ processing करते हैं to get 2 kinds of petrol which are A and B. अब बोला है 2 प्रोसेस पॉसिबल है. वन इज द ओल्डर प्रोसेस, द अदर वन इज द न्यूअर प्रोसेस. वी कैन ब्लेंड द क्रूड ऑयल बाय यूजिंग दीज 2 प्रोसेसेस. फर्स्ट हमें ओल्ड प्रोसेस से डिटेल दिया है, कितना रॉ मटेरियल इनपुट करके व्हाट आउटपुट वी कैन गेट. इसके बाद द न्यूअर प्रोसेस यूजेस 3 यूनिट्स ऑफ क्रूड क्यू, 9 यूनिट्स ऑफ क्रूड पी एंड 4 यूनिट्स ऑफ क्रूड आर टू प्रोड्यूस 5 यूनिट्स ऑफ ए and 9 units of B. Then now we are given the newer process का input and output. How much and what crude oil you will input और उससे हमें कौन सी क्वालिटी का कितना पेट्रोल मिलेगा. So from older and newer both processes हमारा input और output कितना होगा, that is all given. Because of prior contract commitments, the refinery must produce at least 500 units of A and at least 300 units of B for the next month. At least it's given, मतलब minimum requirement है, कम से कम इतना तो बनना ही चाहिए. आप older process रन करो चाहे newer process रन करो, कोई भी process आप रन करो, minimum requirement है कि A के 500 units और B के 300 units बनने ही चाहिए. It has 1500 units of crude Q, 1900 units of crude P and 1000 units of crude R. This is availability. जो हमारे raw materials हैं crude Q, P और R, उन तीनों की availability हमें given है. How much material is available? So maximum हम इतना ही use कर सकते हैं, इससे ज़्यादा we cannot use. For each unit of A, refinery receives rupees 60, while for each unit of B, it receives rupees 90. This is the revenue given. A का अगर 1 यूनिट वो सेल करते हैं तो they get 60 rupees, B के 1 यूनिट पे they get 90 rupees. This is what they earn. Formulate the problem as linear programming model so as to maximize the revenue. Revenue maximize करने के लिए हमें LPP frame करनी है. Our objective should be to maximize the revenue. Question समझ में आया? Okay. What should we take as variables? QPR. PQR. Okay. How much quantity of these will be put in subject to the limitation? That these quantities are like 1500 units of Q, 900 units. What about finished goods? वो कैसे आएंगे? How will you get the objective? Actually,
Z is equal to 60A plus 90B. So we should take the finished goods as variable, A and B. Okay. Revenue from the finished goods selling output. हाँ, तो we'll get the objective. But then what about the constraints? जो हमारे रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी का constraint है, वो कैसे निकालोगे? So neither raw materials nor the finished goods can be taken as variables. दोनों में से कोई भी एक अगर आप लेते हो, दूसरे का कैलकुलेशन आप नहीं कर पाओगे. आपको बोला है हम दो प्रोसेस रन कर रहे हैं, ओल्डर प्रोसेस, न्यूअर प्रोसेस. ओल्डर प्रोसेस का भी आपको डिटेल दिया हुआ है. एक बार जो प्रोसेस रन होता है उसमें कितना कितना मटेरियल लगता है और कितना फिनिश गुड्स मिलता है. न्यूअर प्रोसेस का भी सेम दिया है. एक बार अगर आप न्यूअर प्रोसेस रन करते हो तो हाउ मच रॉ मटेरियल यू नीड एंड व्हाट ऑल फिनिश गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, दोनों के डिटेल दिए. अगर हम ओल्डर और न्यूअर प्रोसेस कितनी बार रन किए गए इनको वेरिएबल माने तो द नंबर ऑफ टाइम्स यू आर रनिंग ओल्डर प्रोसेस एंड द नंबर ऑफ टाइम्स यू आर रनिंग न्यूअर प्रोसेस. अगर हम इन दोनों को वेरिएबल माने तो क्या हम सारी अपने रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स दोनों की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर पाएंगे? इफ सपोज वी टेक द ओल्डर और number of times the older and newer process are run. अगर हम इनको x और y कंसिडर करते हैं, ओल्डर प्रोसेस सपोज हम x टाइम्स रन कर रहे हैं, न्यूअर प्रोसेस सपोज हम y टाइम्स रन कर रहे हैं. ओके, नंबर ऑफ टाइम्स इतने बार हम ये प्रोसेस दोनों रन कर रहे हैं, ओल्डर एंड न्यूअर. हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है? नंबर ऑफ फिनिश्ड यूनिट्स कितने बनेंगे और नंबर ऑफ रॉ मटेरियल हमें कितना चाहिए. क्रूड जो है हमारा PQR, उनकी नंबर्स हमें चाहिए, प्लस फिनिश गुड्स जो है A और B, उनका भी हमें नंबर चाहिए. दोनों चीज़ें हमें चाहिए. अगर हम इनको XY कंसिडर करते हैं, क्या वो हम फाइंड कर सकते हैं? हमें दिया हुआ है एक बार अगर आप ओल्डर प्रोसेस रन करते हो, आपको तीनों तरह के मटेरियल के कितने यूनिट्स कंज्यूम होते हैं आपके और फिनिश गुड्स के कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं, दिया हुआ है ना. ओल्डर प्रोसेस में वी नीड 5 यूनिट्स ऑफ Q, 7 ऑफ P एंड 2 यूनिट्स ऑफ R. तो दैट मीन्स अगर मैं X टाइम्स ओल्डर प्रोसेस रन कर रही हूँ तो आई कैन से आई विल नीड 5x यूनिट्स ऑफ Q, 7x यूनिट्स ऑफ P एंड 2x यूनिट्स ऑफ R. बोल सकते हो, मतलब मुझे रॉ मटेरियल क्वांटिटी मिल गई. वैसे ही बोला है ओल्डर प्रोसेस रन करते हैं तो 9 यूनिट्स A के मिलते हैं, 7 यूनिट्स B के मिलते हैं. तो अगर मैं x टाइम्स ये प्रोसेस रन कर रही हूँ तो मुझे 9x यूनिट्स A के मिलेंगे और 7x यूनिट्स B के मिलेंगे. मुझे फिनिश गुड्स आउटपुट की भी क्वांटिटी मिल गई. सिमिलरली न्यूअर प्रोसेस के लिए भी मिल जाएगी. अगर मैं न्यूअर प्रोसेस y टाइम्स रन करती हूँ तो इसमें कितना क्रूड और कितने फिनिश्ड आउटपुट मेरा जनरेट होता है, क्वांटिटीज़ मिल जाएंगी. तो इनको XY कंसिडर करके जब मुझे रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स दोनों की क्वांटिटी मिल जाएगी, मैं सारे कॉन्स्ट्रेंट्स प्लस ऑब्जेक्टिव सब कुछ लिख सकती हूँ. अगर सिर्फ रॉ मटेरियल को एक वेरिएबल ले लेती तो फिनिश गुड्स वाले कॉन्स्ट्रेंट्स और ऑब्जेक्टिव दोनों मैं नहीं डिराइव कर पाती. सिर्फ फिनिश गुड्स को अगर वेरिएबल लेती, रॉ मटेरियल से रिलेटेड जो कॉन्स्ट्रेंट्स है वो मेरे इनकम्प्लीट रह जाते. लेकिन अगर मैं प्रोसेस को यहाँ पर वेरिएबल लेती हूँ तो मैं रॉ मटेरियल क्वांटिटी भी फाइंड कर सकती हूँ, मैं फिनिश गुड्स क्वांटिटी भी फाइंड कर सकती हूँ. क्लियर है? सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट द ऑब्जेक्टिव एज मैक्सिमाइज Z इज इक्वल टू A के एक यूनिट से हमें मिल रहा है 60 रुपीज़ और B के एक यूनिट से 90 रुपीज़. A के कितने यूनिट्स बनेंगे? तो जब आप ओल्डर प्रोसेस रन कर रहे हो तो आपके 9 यूनिट्स बनते हैं एक बार के प्रोसेस रन करने में.
you are running the older process for x times, that means 9x यूनिट्स बनेंगे फॉर ए। वैसे ही जब आप न्यूअर प्रोसेस रन करोगे, एक प्रोसेस रन में आपके बनते हैं 5 यूनिट्स ऑफ ए। सो व्हेन यू आर रनिंग द प्रोसेस फॉर y टाइम्स, आपको ए के मिलेंगे टोटल 5y यूनिट्स। ओके, इनसे मिलने वाला रेवेन्यू इज 60 रुपीज। दिस इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ ए वी हैव प्रोड्यूस्ड, दिस फ्रॉम द ओल्डर प्रोसेस, दिस फ्रॉम द न्यूअर प्रोसेस। टोटल इतने यूनिट्स हमने ए के प्रोड्यूस किए, एक यूनिट पे मिल रहा है हमें 60 रुपीज। सो दिस इज द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ए। सिमिलरली फ्रॉम बी वी विल फाइंड, दोनों से मिला के द रेवेन्यू शुड बी मैक्सिमाइज्ड। ये तो ए का रेवेन्यू हो गया प्लस द रेवेन्यू फ्रॉम बी। बी के कितने यूनिट्स बनेंगे, तो बोला है ओल्डर प्रोसेस से पर प्रोसेस 7 यूनिट्स बनते हैं एंड वी आर रनिंग द ओल्डर प्रोसेस x टाइम्स, सो वी विल हैव 7x यूनिट्स ऑफ बी। देन न्यूअर प्रोसेस से बी के 9 यूनिट्स बनते हैं, सो दिस शुड बी 9y यूनिट्स ऑफ बी फ्रॉम द न्यूअर प्रोसेस। और हर एक यूनिट पे वी आर गेटिंग अ रेवेन्यू ऑफ 90 रुपीज। क्लियर है? वी कैन सिंप्लीफाई दिस। दिस विल बी 540x प्लस 300y प्लस 630x प्लस 810y. x और x will be added up, so this will be 1170x plus 1110y. So final objective is this. We have to maximize this figure. x और y हमें इस तरह से चूज करना है कि हमारा ये टोटल मैक्सिमाइज हो सके। ये क्लियर है? नाउ कमिंग टू कॉन्स्ट्रेंट्स। सब्जेक्ट 2 कॉन्स्टेंट्स में हमें बोला गया है द फर्स्ट थिंग इन द सेकेंड पैराग्राफ, मिनिमम 500 यूनिट्स ऑफ ए शुड बी प्रोड्यूस्ड। मिनिमम 500 यूनिट्स तो हमें प्रोड्यूस करना ही है ए के। ए के कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं? इतने यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं क्या? 9x फ्रॉम द ओल्डर प्रोसेस, 5y फ्रॉम द न्यूअर प्रोसेस। सो वी कैन राइट 9x प्लस 5y, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 500। या तो 500 के बराबर होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। ओके, मिनिमम 500 हमें बनाना है। सिमिलरली फॉर बी इट्स गिवन मिनिमम यू हैव टू प्रोड्यूस 300 यूनिट्स। बी के वी आर प्रोड्यूसिंग 7x प्लस 9y यूनिट्स। दिस शुड अगेन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 300। देन इसके बाद हमें अवेलेबिलिटी दी है। रॉ मटेरियल जो हमारा है क्रूड क्यू की अवेलेबिलिटी इज ओनली 1500 यूनिट्स। तो दोनों प्रोसेस आप जितनी बार भी रन करो, ओल्डर और न्यूअर प्रोसेस मिला के 1500 यूनिट से ज़्यादा कंज्यूम नहीं होना चाहिए। दैट इज़ द मैक्सिमम लिमिट। एक बार अगर हम ओल्डर प्रोसेस रन करते हैं तो हमारा क्यू के कितने यूनिट्स लगते हैं? 5 यूनिट्स एंड वी आर रनिंग द प्रोसेस x टाइम्स, so that means we will consume 5x units. Newer process में एक बार में we are consuming 3 units of Q and we are running the newer process y times. So 3y will be the quantity of Q consumed in the newer process. Q का इतना old process में consume हुआ, इतना new process में consume हुआ. This consumption should not exceed 1500 units. Maximum जो हमारे पास available है, so this should be less than equal to 1500. These two are for minimum commitments. Now we are doing the raw material availability वाले constraints. ये हो गया crude Q. Then crude P. Crude P के बारे में बोला है we have maximum 1900 units. P के कितने units consume हो रहे हैं? तो ओल्ड प्रोसेस में 7 मतलब 7x, न्यू प्रोसेस में 9, सो 9y। दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू
1900. Similarly for crude R, older process में we are consuming 2 units of R, 2x. Newer process में we are consuming 4 units of R, 4R. This should be less than equal to 4y. This should be less than equal to 1000. ये तीनों हो गए हमारे रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी कॉन्स्ट्रेंट्स. सारे कॉन्स्टेंट्स बस यही है. नो अदर कॉन्स्टेंट इज गिवन. सो लास्ट में वी विल राइट द नॉन नेगेटिविटी अजम्पशन. क्लियर है? लिख लो. राइट एंड देन रीड द नेक्स्ट फोर्थ. See, fourth. Transport Limited provides tourist vehicles of 3 types: 20-seater vehicles, 8-seater big cars and 5-seater small cars. These are the 3 types of vehicle provided. अलग अलग types of vehicles हैं. तीनों vehicles की हमें capacity दी है. The van has 20 members capacity, 20 passengers. Big cars में 8 people can sit in, small में 5. These seating capacities are excluding the drivers. केवल passengers का ही नंबर दिया हुआ है, driver इसके अंदर included नहीं है. The company has 4 vehicles of 20-seater van type, 10 vehicles of 8-seater big car types and 20 vehicles of 5-seater small car types. This is the maximum number of vehicles available. Maximum कितने हमारे पास गाड़ियाँ हैं. तो वैन्स हमारे पास मैक्सिमम 4 ही है, सो वी कैन यूज ओनली 4. उससे ज़्यादा वी कैन नॉट यूज. दीज आर रेस्ट्रिक्शंस, कॉन्स्ट्रेंट्स हो गई है हमारे. बिग कार वी हैव 10 एंड स्मॉल कार वी हैव 20. दीज व्हीकल्स टू बी यूज टू ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज ऑफ देयर क्लाइंट कंपनी फ्रॉम देयर रेसिडेंसेज टू देयर ऑफिसेज एंड बैक. हमारी जो क्लाइंट है उनके एम्प्लॉयज़ को हम ऑफिस से रेसिडेंस रेसिडेंस से ऑफिस and then back from office to residence. We provide this service to them. All the residences are in the same housing colony. एक ही जगह पर है. So we do not have to pick up and drop the employees at different places. सारे residences एक ही colony में. The offices are at 2 different places. One is the head office and the other is the branch office. Offices लेकिन 2 जगह पर है. रेसिडेंसेस सबके एक ही कॉलोनी में है, बट देर आर ऑफिसेज लोकेटेड एट 2 different locations. One is the head office and the other is branch. एक ऑफिस हेड ऑफिस में, कुछ एम्प्लॉयज हेड ऑफिस में जाते हैं and some other employees they go to the branch. Each vehicle plies only 1 round trip per day, that is residence to office in the morning and office to residence in the evening. Every vehicle it goes once from residence to office and then it returns back in the afternoon or evening from office to residence. एक ही ट्रिप लगाते हैं, 2-3 ट्रिप्स नहीं है. there is a single trip. Each day 180 officials need to be transported in route 1 from residence to head office and back. वो स्टेपल गलत हुआ है. The question is continued on the next page. So there are total 180 officials जिनको रूट 1 पे हमें ट्रांसपोर्ट करना है. रूट 1 मतलब टू हेड ऑफिस. whereas there are 40 officials जिन्हें हमें रूट 2 पे ट्रांसपोर्ट करना है. दैट इज ब्रांच ऑफिस वाला रूट. देर आर टोटल 180 ऑफिशियल्स जिन्हें हमें हेड ऑफिस वाले रूट में अकोमोडेट करना है और 40 ऑफिशियल्स को हमें ब्रांच ऑफिस वाले रूट में अकोमोडेट करना है. सो दिस इज मिनिमम. कम से कम इतने एम्प्लॉयज़ जितनी तो हमें कैपेसिटी रिजर्व करनी पड़ेगी. 180 और 40 जितनी कैपेसिटी हमारी रिजर्व हो जानी चाहिए दोनों रूट्स में. इससे थोड़ी ज़्यादा कैपेसिटी होगी चलेगा, इससे कम हुई तो कुछ एम्प्लॉयज़ को हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे. The cost per round trip for each type of vehicle along with each route is given below. Cost per round trip दिया हुआ है हर एक व्हीकल का हर एक रूट में. नीचे जो टेबल दिया है उसमें इट्स गिवन वैन, बिग कार, स्मॉल कार, तीनों तरह के गाड़ियों का
ऑन रूट 1 एज वेल एज रूट 2 कितना कॉस्ट पर राउंड ट्रिप होता है. You are required to formulate the information as in LPP with the objective of minimizing the total cost of hiring vehicles for the client company. कॉस्ट को मिनिमाइज करने का आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा. वी हैव टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ हायरिंग व्हीकल्स subject to the constraints mentioned above. Only formulation is required, solution is not needed. Now what variables should we choose? Roots and car. Both. Roots and car. Both. हमें वेरिएबल्स रूट्स और कार दोनों को ध्यान में रखते हुए चूज करना पड़ेंगे. केवल कार के टाइप का वेरिएबल चूज करने से काम नहीं होगा, केवल रूट्स का वेरिएबल चूज कर लेने से भी काम नहीं होगा. सो वी विल हैव टू चूज द वेरिएबल्स हु आर रिप्रेजेंटिंग द रूट्स एज वेल एज द कार्स. वेरी गुड. सो लेट्स assume the variables to be number of vans, big cars and small cars allocated to route 1 and 2 be V1, V2, B1, B2, S1, S2. Number of vans going in route 1 will be V1. Number of vans for route 2 will be V2. Number of big cars, route 1 ka B1 and route 2 ka B2. Like that we are choosing our vehicles. Okay, the number of vehicles we have allotted to both the routes. Now, objective will be to minimize the cost. Minimize Z is equal to, कॉस्ट हमें दिया हुआ है व्हीकल और रूट वाइज ही. इफ वन वैन और इफ वन राउंड ट्रिप इज टेकन बाय अ वैन फॉर रूट 1 इट कॉस्ट 600 रुपीज. वैन अगर एक राउंड ट्रिप लगाता है रूट 1 में तो कॉस्ट लगता है 600 रुपीज. जितने वैन्स आप अलोकेट करोगे उतने ही राउंड ट्रिप्स भी लगेंगे. एक दिन में एक ही राउंड ट्रिप होता है, तो जितने वैन्स आपने अलोकेट किए रूट 1 में उतने ही राउंड ट्रिप्स भी होंगे. We have allocated V1 number of vans. That means the cost will be 600 V1. Similarly, अगर आप वैन को रूट 2 पे चलाते हो तो पर राउंड ट्रिप इट कॉस्ट यू 500 रुपीज. वैन एंड रूट 2 इट इज कॉस्टिंग अस 500 रुपीज. हमने V2 नंबर ऑफ वैन्स को रूट 2 पे अलोकेट किया तो इससे कॉस्ट लगेगा हमारा 500 V2. वैसे ही बिग कार्स के लिए पर बिग कार अगर आप रूट 1 पे चलाओगे तो कॉस्ट विल बी 400. वी आर रनिंग B1 नंबर ऑफ बिग कार्स इन रूट 1 तो हमारा कॉस्ट हो जाएगा 400 B1. फॉर रूट 2 दिस विल बी 300 B2. फॉर स्मॉल कार्स 300 S1 एंड 200 S2. ये समझ में आया? Any doubts? This is the objective. Now coming to constraints. Subject to. बताओ पहला constraint. The capacity of the vans. The capacity of the vans. Capacity or number? Number of vans. Number of vans, cars, the available number. V1 plus V2 should be लेस देन इक्वल टू 4. 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता. सिमिलरली B1 प्लस B2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 8 इज द सीटर. सीटिंग कैपेसिटी है. नंबर इज 10. S1 प्लस S2 20. दिस इज नंबर ऑफ व्हीकल्स अवेलेबल.
Next constraint. या बोलो क्या बनेगा उससे. So 20 people maximum can sit in one van. So we will have to allot one more variable. You'll have to allot वेरिएबल. नो, जितने ऑब्जेक्टिव में आते हैं उसके अलावा कॉन्स्टेंट में कोई नया वेरिएबल नहीं आता. 20v1 plus 8b1 plus 5s1 करेक्ट. less than equal to 180. नॉट लेस देन, ग्रेटर देन. इतने तो एम्प्लॉयज़ हैं ही, तो इन्हें तो हमें ट्रांसपोर्ट करना ही है 180 को. उससे ज़्यादा थोड़ी कैपेसिटी हुई, 3-4 एक्स्ट्रा हमारे पास सीट्स हैं, वो चलेगा. कम हुई तो कुछ एम्प्लॉयज़ रह जाएंगे. सो वी हैव 20v1 प्लस 8b1 प्लस 5s1. This should be greater than equal to 180. Vans allocated in route 1, उसकी कैपेसिटी है 20, तो टोटल वैन में 20 V1 पैसेंजर्स जाएंगे. बिग कार्स में 8 B1 जाएंगे. एक कार की कैपेसिटी इज 8 पैसेंजर्स. सो B1 नंबर ऑफ व्हीकल्स आर मूविंग इन रूट 1. सो वील हैव 8 B1 नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन बिग कार्स एंड 5S1 नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन स्मॉल कार्स. टोटल ये मिला के हमें कम से कम 180 पैसेंजर्स को तो ट्रांसपोर्ट करना ही है. कम से कम 180 की कैपेसिटी हमें चाहिए. उससे थोड़ी ज़्यादा होगी तो चल जाएगी, इससे कम नहीं होना चाहिए. सिमिलरली फॉर रूट 2 वील हैव 20v2 प्लस 8b2 प्लस 5s2. दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 40. और कोई कॉन्स्ट्रेंट? Cost is an objective. These are all the constraints. So now we'll have non-negativity. This is minimum requirement V1, V2, B1, B2, S1, S2 all should be greater than equal to 0. Any doubts? Write this and read 5th.